welcome to our YouTube channel Uchai, and today we're gonna learn one thing that mostly students skip. तो अगर आप स्कोर तो कर लेते हैं 70-80 is like good one, but you are not able to exceed your limit beyond 80 क्योंकि वहाँ पे आप एक लूप में फंस गए हैं कि एक स्कोर के बाद आगे बढ़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जो पढ़ने में अच्छे हैं, स्कोर भी कर लेते हैं, but there is something unsaid, restriction that they have put on themselves, that they are not able to come out of that thing. So here, before initiating this particular topic and before talking about the strategy, I would like to just tell you all is that कि हम लोग 3 ऐसी strategy पे focus करेंगे जिससे आप इस loop से बाहर निकल सकें. उससे पहले I would like to tell you all about Uchai. So Uchai is one of the edtech platform. Here we focus on to one-to-one mentorship for the students who are preparing for JEE and NEET. तो अगर आप aspirant हैं, अगर आपके siblings, relative या कोई और preparation कर रहे हैं and they want to have right guidance for this one, here's one of the platform to which you can reach out, which is Uchai. So यहाँ पे जो हमारे mentors हैं वो हैं IIT colleges से, और जो already NEET clear कर चुके हैं, एम्स में पढ़ रहे हैं, वो guide कर सकते हैं उन सभी aspirants को जो इन exams की preparation कर रहे हैं. There are currently many of the students enrolled into our courses, and you can also check out about us onto our platform like YouTube. You can visit our website for one-to-one mentorship. Here every detail that you will get, and in case you want to have a book session, then we do have that facility as well. So let's focus on to our main topic here that we started. हम बात कर रहे हैं उन main 3 strategy के बारे में कि जिनसे you can focus better. So we will see the slide 2 here. There are 3 strategies that we are going to talk. तो आप 70-80 कर लेते हो, ठीक है. ये मैं ऐसा नहीं है कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, बी इट योर साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज़. आप 10th के एग्जाम दे रहे हो, अपने 11th के एग्जाम दे रहे हो, एक सर्टेन स्कोर के बाद उससे ऊपर नहीं जाया जाता. I would like to narrate a very small story about mine. तो up to 6th I wasn't interested into studies. ठीक है, इंटरेस्टेड इन द सेंस ऑफ कि मुझे उतना मज़ा नहीं आता था. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग माय 6th. तो मैंने अपना मीडियम चेंज किया था. मैं पहले हिंदी मीडियम में थी, देन आई वेंट इनटू माय इंग्लिश मीडियम, एंड वहाँ से मेरे को ना पढ़ने में मज़ा आने लगा. तो मतलब ऐसा था कि आई यूज्ड टू स्टडी बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग हियर. अब हम देखते हैं कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 3 थिंग्स दैट यू समवेयर नॉट डूइंग इट. हो सकता है आप बहुत रिविजन कर रहे हैं. सो लेट्स से दिस थिंग, यू आर रिवाइजिंग, बट आप रिकॉल नहीं करते हैं. रिकॉलिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक द वे जो आप रिवाइज करते हैं ना वो. तो आपने कुछ भी अगर पढ़ा है एंड आप एक्टिव रिकॉलिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, there will not be any point to go ahead with that thing. So make sure active recalling आपकी होनी चाहिए. And active recalling आप कैसे करेंगे? Revision का एक pattern होना चाहिए. Using that you will be able to follow that structure. Second thing here we would like to emphasize is that there are few of the points that I noted down. Your answers are really good, but somewhere is actually not able to focus as per the answer structure. मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था जिसमें हम लोग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात कर रहे थे, दैट यू ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन टू योर आंसर स्ट्रक्चर. आपके आंसर्स कितने भी अच्छे हों, बट अगर आप प्रॉपरली उनको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से लिखना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड पता चला फॉर इंस्टेंस कि आप आंसर लिखने बैठ गए, मैंने आपको बोल दिया कोई भी हम टॉपिक ले लेते हैं अपना, मैं SST से पिक करती हूँ या फिर पॉलिटिकल साइंस से ले लेते हैं. You have to write about USSR, okay? Or maybe you have to write summary of any of your English chapter. आप English के अलावा हम कोई भी geography ले सकते हैं, history ले सकते हैं. You want to write something and आप बस लिखने बैठ गए without thinking कि आप किस bracket के अंदर उस particular topic को address करने वाले हैं. तो आंसर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अगर आपको लगता है आपको सब कुछ आता है and directly आपका टेस्ट तो एग्ज़ाम में होगा,
तो फिर रिजल्ट भी आपका टेस्टिंग मोड में ही आएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए. हम थर्ड बात करते हैं विच इज़ गोइंग टू बी द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर वी इज दैट कि रिविजन अगर रैंडम होता है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है. एक्चुअली आई एम टचिंग माई हैंड्स टू दिस थिंग, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारा क्लैरिटी पे फ़र्क पड़ रहा है. सो वी विल जस्ट ट्राई टू क्लीन दिस. ओके, रिविजन अगर आप रैंडम कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. रिविजन भी प्लान्ड होना चाहिए. अगर एक हफ्ता हिस्ट्री को देना है, एक हफ्ता फिजिक्स को देना है, एक हफ्ता केमिस्ट्री को देना है, तो फिर उसी को देना है. बीच में आप कोई अपना दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग. इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ दैट यू कैन फॉलो इज दैट देयर इज वन रूल. ओके, लेट मी जस्ट टेक यू टू द अनदर स्लाइड एंड okay. Here are rule for scoring above 90, which is going to be just remember one thing, 3, 7 and 15. What's this? तो 15 डेज का हम एक रिवीजन टारगेट रख रहे हैं. ये मैंने ऑन एवरेज लिया है क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से बदल भी सकता है, मे बी 10 डेज 7 डेज डिपेंडिंग अपॉन दैट वन, बट एक जनरल 3-7, क्योंकि अगर कोई लेंदी सब्जेक्ट है तो हम वो वाला फ्रेम भी कंसिडर करेंगे. सो वी विल सी. डे 1 में तो होगा आपका स्टडी, ठीक है. डे 2 में भी आपका स्टडी होगा. डे 3 जो है वो आपका होगा रिविजन, ठीक है. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. एंड देन जो आपका डे 7 होगा दैट विल बी ऑल्सो फॉर रिविजन. एंड डे 15 में आप फाइनल रिविजन करेंगे. नाउ यू माइट से दैट कि मैम तो फिर आपने तो सेम ही बात रिपीट कर दी कि हम 2 बार रिवीजन कर रहे हैं. ये जो आपका रिवीजन का विंडो है ना 3 to 7 का, इन दिस वन यू कैन जस्ट पिक अप एनी अदर सब्जेक्ट एंड कैन गो फॉर द रिवीजन फॉर दैट थिंग, ठीक है. एंड डे 15 में आपका फाइनल रिवीजन होगा. एंड रिवीजन ऐसा करना है कि बार बार उसको टच करने की ज़रूरत ना पड़े. हेयर्स इन स्टोरी, शायद बहुत सारे लोगों का फिजिकल एजुकेशन भी होगा क्लास 12th में. तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ऐसे होता था कि हम लोग ना नवंबर दिसंबर प्रिपेयर कर लेते थे, फिर उसको टच नहीं करेंगे. बोर्ड एग्जाम के बस एक हफ्ते पहले उसको निकाला एंड खत्म कर दिया. सो देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जिन पे लेस इंपॉर्टेंस के साथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो हम उन पे टाइम वेस्ट क्यों करें. क्योंकि जैसे साइंस वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए या ह्यूमैनिटीज़ वाले हो गए, सबके में एक स्कोप रहता है कि इन सब्जेक्ट्स को, जैसे कि हिंदी इंग्लिश को लोग कम ध्यान देते हैं, फिजिकल एजुकेशन पे कम ध्यान देते हैं, कोर पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेट्स से दैट. कॉमर्स वालों का अकाउंट्स हो गया एंड बाकी सब्जेक्ट्स हो गए. सेम फॉर ह्यूमैनिटीज़ का हिस्ट्री पॉल साइंस एंड आपके बाकी सब्जेक्ट्स हो गए. सो जस्ट रिमेंबर 3, 7 एंड 15 रूल. यू विल बी एबल टू स्कोर रियली गुड. यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट कि आप सही टाइम डिवाइड कर रहे हो एंड यू कैन कम to that loop of 70 to 80 marks. If there is anything that you want me to help you, I would love to help. Do let me know in comment section. If there is anything जो आप plan चाहते हैं, आप चाहते हैं कि if I just help you, you know, in customizing your plan or something, I would love to help. Humanities से related students को कुछ doubt है या आप किसी भी stream से हो, you can just do let us know. If there is anything specific जो आप cover करवाना चाहते हैं हमसे यहाँ पे, तो हम उस पर सोच सकते हैं. बताइए कि आपका फिलहाल स्टडी प्रॉब्लम किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड है. मेक श्योर ऊंचा इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड 1-to-1 मेंटरशिप फॉर GNE. तो अगर आपके आसपास कोई है जो प्रिपेयर कर रहा है, डू रीच आउट टू अस एंड एक्सप्लोर आवर कोर्सेज. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ऊंचाई फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट. बाय बाय फॉर नाउ.